नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जयन्ति योगिनः कामदमोक्षदो चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् मङ्गलम् गौतमो मंगलम कुंकुमधारी भुजेन्द्र सुमंगलम नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वाणां विभाव नियुक्त निराधार। પરમાત્મા પ્રકાશ આચાર્ય ભગવાન યોગિન્દુ દેવ રચિત પરમાત્મા પ્રકાશનો સ્વાધ્યાય આપણે કરી રહ્યા છીએ. એમાં ગાથા 114નો સ્વાધ્યાય ચાલે છે. આચાર્ય ભગવાનની ગાથા 114, એનો અન્વયાર્થ, ભાવાર્થ તથા પૂજ્ય ગુરુદેવ કાનજી સ્વામીએ આ ગાથા ઉપર કરેલ પ્રવચનનો કેટલોક ભાગ આપણે કર્યો છે. શેષ ભાગ આજે લઈશું અને તે પછીથી ગાથા 115 લઈશું અને તેનો વિસ્તાર પણ પૂજ્ય ગુરુદેવ પાસેથી સમજીશું. તો આજે પહેલા ગાથા 115 લઈએ છીએ. ગાથા 115ના ઉપોદ્ઘાતમાં અહીંયા કહે છે કે आगे हे जीव चिंताओं को छोड़कर शुद्ध आत्म स्वरूप को निरंतर देख, ऐसा कहते हैं. तो गाथा 115 मुक्त्वा सकला चिंता जीव निश्चिंत भूत्वा चित्तम निवेशय परम पदे देवम निरंजनम पश्य. 115મી ગાથાના અન્વયાર્થમાં કહે છે કે હે જીવ सकला चिंता मुक्त्वा, हे जीव समस्त चिंताओं को छोड़कर निश्चिंत हो भूत्वा, निश्चित होकर तू चित्तम परम पदे, अपने मन को परम पद में निवेशय निरंजनम देवम पश्य, धारण कर और निरंजन देव को देख. हे जीव समस्त चिंताओं को छोड़कर निश्चित होकर तू अपने मन को परम पद में धारण कर और निरंजन देव को देख. ધ્યાનની વાત કરવી છે ને, એટલે ધ્યાનનું સ્વરૂપ ચિંતા નિરોધ એવું ધ્યાનનું સ્વરૂપ છે. એટલે અહીંયા ચિંતાઓને છોડી અને ધ્યાન કર એમ કહેવાનો આશય છે. આપણે ગુજરાતીમાં ગાથા લઈએ. જીવ સર્વ ચિંતા તજી થઈ નિશ્ચિંત સદૈવ, પરમ પદે મન ધાર તું દેખ નિરંજન દેવ. એના અર્થમાં કહે છે કે હે જીવ, તું સર્વ પ્રકારની ચિંતાઓ તજી નિશ્ચિત થઈ પોતાના મનને પરમ પદમાં ધારણ કર અને નિરંજન દેવને જો. હે જીવ, તું સર્વ પ્રકારની ચિંતાઓ છોડીને, ચિંતાઓથી નિશ્ચિત થઈને, ચિંતા વિનાનો થઈને, સર્વ ચિંતાઓ ત્યાગીને પોતાના મનને પરમ પદમાં ધારણ કર અને નિરંજન દેવને જો. એટલે કે પોતાના અતિશ્રુત જ્ઞાન ને સ્વરૂપ તરફ વાળી દે. તારા જ્ઞાન દર્શનના ઉપયોગને સ્વરૂપ તરફ વાળી અને તારા ચિદાનંદ ઘન ભગવાન આત્માને જો, એનું જ્ઞાન કર, એનો અનુભવ કર. વિસ્તાર કરતા કહે છે, હે જીવ, તું જોયેલા, સાંભળેલા તથા અનુભવેલા ભોગોની ઈચ્છારૂપ અપધ્યાન આદિ ચિંતાઓ તજી અત્યંત નિશ્ચિત થઈ મનને
પરમાત્મા સ્વરૂપમાં સ્થિર કર. કેવી રીતે સ્થિર કરવું છે? કઈ પ્રકારની ચિંતાઓ છે? તો કહે છે કે ચિંતાઓને છોડી નિશ્ચિત થઈ અને પોતાના પરમાત્મા સ્વરૂપમાં તું એકાગ્રતા કર. અને એ ચિંતાઓને વિશે એમ કહે છે કે આ જોયેલા, સાંભળેલા અને અનુભવેલા ભોગોની ઈચ્છા રૂપી અપધ્યાન, એ બધું અપધ્યાન છે, એ ચિંતાના કારણો છે. એટલે એવા અપધ્યાન આદિ ચિંતાઓ તજી છોડી અને અત્યંત નિશ્ચિત થઈ મનને પરમાત્મા સ્વરૂપમાં સ્થિર કર. પછી ભાવ કર્મ, દ્રવ્ય કર્મ તથા નો કર્મ રૂપી અંજનથી રહિત પરમ આરાધ્ય એવા નિજ શુદ્ધ સહજ આત્મ સ્વરૂપનું ધ્યાન કર. આ ભાવ કર્મ, દ્રવ્ય કર્મ અને નો કર્મ રૂપ અંજનથી રહિત થઈ, એ બધી મલિનતા છે, એનાથી તું રંગાયેલો છે, એનાથી તું મલિન થયો છે. તો એ બધાથી રહિત થઈને ભાવ કર્મ, દ્રવ્ય કર્મ અને નો કર્મ રૂપી અંજનથી રહિત થઈ ને પરમ આરાધ્ય એવા પોતાના શુદ્ધ સહજ આત્મ સ્વરૂપનું ધ્યાન કર. પેલા બધા અપધ્યાન છે એને છોડ અને પોતાના ત્રિકાળી શુદ્ધ સ્વરૂપ નું ધ્યાન કર. અને પછી અપધ્યાનનું લક્ષણ કરી અને અહીંયા એક ગાથા કહેવામાં આવી છે આધાર તરીકે. કોને અપધ્યાન કહેવાય? તો એમાં બંધ વધ છેદ આદે દેશાદ્રગાચ્ય પરકલત્રાદેહ આર્ત ધ્યાનમ અપધ્યાનમ શાસતી જીન શાસને વિશદા. અપધ્યાનનું લક્ષણ: દ્વેષથી કોઈને મારવાનો, બાંધવાનો તથા છેદવાનો વિચાર કે રાગથી પારકાની સ્ત્રીનો વિચાર કરવો, તેને જૈન શાસનમાં નિપુણ પુરુષો અપધ્યાન કહે છે. તે ધ્યાન નરક નિગોદ આદિનું કારણ છે. આવું અપધ્યાન છે તે નરક ગતિનું કારણ છે. અને 2000 સાગરોપમનો કાળ પૂરો થઈ જતા જીવ નીચે પડતા પડતા છેવટે ઈતર નિગોદમાં ચાલ્યો જાય છે. એટલે આવા અપધ્યાનને છોડીને તું તારા આત્માનું ધ્યાન કર. એટલે કે છે કે એ અપધ્યાન છે એ સર્વથા હેય છે. તો એ રીતે ગાથા 115 છે. એનો વિસ્તાર લઈએ એ પહેલા ગાથા 114નો શેષ ભાગ આપણે પૂજ્ય ગુરુદેવ પાસેથી સમજવાના છીએ. તો સહેજ ગાથા 114નું પુનરાવર્તન કરીએ. ગાથા 114માં એ વાત ચાલી રહી છે કે જો આ જીવ અર્ધ નિમેષ જેટલો સમય પણ, આંખનો પલકારો એનો જેટલો સમય છે એ નિમેષ એટલે એના કરતા પણ અડધો સમય, એટલે કે છે કે જો આ જીવ અર્ધ નિમેષ જેટલો સમય પણ પરમાત્મામાં અનુરાગ કરે તો જેમ અગ્નિનો પણ મોટા કાષ્ઠના સમુદાયને બાળી મૂકે છે, ગમે તેટલો લાકડાનો ઢગલો હોય, પર્વત જેટલો લાકડાનો ઢગલો કર્યો હોય તો પણ એને એક અગ્નિનો કણ બાળી મૂકે છે, તેમ તેના સર્વ પાપ નાશ પામે છે. કોના? જે જીવ અર્ધ નિમેષ જેટલો સમય પણ પરમાત્મામાં અનુરાગ કરે છે, એટલે પોતાના સ્વરૂપની રુચિ કરી અને એમાં એકાગ્રતા લીનતા કરે છે. તો એકાગ્રતા કરે છે તો પણ એને પાપનો નાશ થાય છે, સર્વ પાપનો નાશ થાય છે. તો એનો વિસ્તાર આપણે પૂજ્ય ગુરુદેવ પાસેથી સમજીએ. પરમાત્મા પ્રકાશ પ્રવચન ભાગ 3 વર્ડ ટુ વર્ડ, એના પાના નંબર 383 ઉપર 3જો પેરેગ્રાફ, ત્યાંથી આજે આગળ લઈએ છીએ. નવરસના ગ્રહ
કવિ કળા કા મદ, કવિ કળાનો મદ, કવિ બનાવવાનો शीघ्र कवि नोता है ना, शीघ्र कवि आंसू कवि है ना, देखा है सब, बहुत देखा है, हमारी पास आते हैं। क्या हुआ धूल, मन कसाय, शांत रस में मन कसाय, सब में मन कसाय नहीं है, नव में शांत रस में मन कसाय, दूसरा में तो अभिमान अशुभ भाव है। यहाँ तो कहते कि नव रसायण नो गर्व छोड़, आ सोना ने आम मारी सकिए, भस्म आम करी सकिए, हीरा नी भस्म ऐसा कहते ना, हीरा माणिक मोती भस्म होती है ना। समझ में आया? वो चक्रवर्ती की एक दासी होती है, चक्रवर्ती की दासी, तो हीरा करोड़ों रुपया का एक हीरा, ऐसा मोटी कीमत में ऐसे करके एनी दासीओ અને એ હીરાનો ભૂખો चक्रवर्ती चांदलो करे, क्या आया पण उसमें, दासी हो, रानी एनी नहीं, दासी चक्रवर्ती नहीं, दासी। गाड़ी पर जब बैठते हैं तो करोड़ रुपया नो, अबज रुपया नो एक हीरो आंगली आम लेकर है चांदा करे, चांदा। क्या हुआ उससे? एक गर्व छोड़ी रहे कि ऐसी नहीं शक्ति है, मैं ऐसा करता हूँ। ये तेरी नहीं शक्ति, तेरी तो आनंद कन शक्ति है। अरे रे, सचवात सांभळवा न मळे, ये केदी जाए अंदर क्या जाया। अरे रे, 84 ना अवतार करी करीने मरी गयो छे, नरक ने निगोद ना हो। निगोद ना तो एक श्वास में 18 भाव, भाई भगवान ने कहा एक श्वास में 18 भाव, एवी अनंत वार एक श्वास एवा अनंत श्वास में अनंत अनंत भाव कर्या। भगवान अनादिकाल नो जीव है ने प्रभु। ये परिभ्रमण राग ने पुण्य प्रेमना मिथ्या भावમાં એને આ અનંત કાળ ગાયો। એક વાર કહે છે પ્રભુ આ ભાવ જે છે એ અનંત ભાવના અભાવનો ભાવ કરવાનું ટાણું છે। શ્રીમદ કહે છે ભાઈ, શ્રીમદમાં આવે છે આ ભાવ અનંત ભાવનો અભાવ કરવાના માટે ભાવ છે। બાપુ તને કિંમત નથી। સમજાય છે કે આય કે છે એ કવિ કહેવાનો મત છોડ દે, નહીતર અંદર में नहीं જઈ શકે એમ कहते हैं। हमें कवि, हमें होशियार, हमने जानपणું ઘણું शीघ्र बनाई दिया हम कविता के, क्या है उसमें? ये तो ज्ञान है। कविता भी कविता बनाते हैं। अब प्रोफेसर संस्कृत का क्या पंडित जी अपने घरों में नहीं ले, तो दाखलो प्रोफेसर ये आपसे नहीं खोलियो। राज में जीतने का मद, ये 4 से एक कैसे? कवि कला का मद, राज में जीतने का मद, चर्चा करता करता પોતાની અધિકારી બતાવવાનો મદ। વાત સમજે, વાત કરતે કરતે પોતાની અધિકારી બતાવવાનો મદ, બીજાને હીણો પાડવાનો અને પોતાનો અધિકનો। આવો વાર્તાલાપી એનો એને ગર્વ। तो भगवान तो वितराग स्वरूप प्रभु है अंदर, क्या जई नहीं सके आवा घरों ने लઈને। समझे? समझ में आया? बाद में शास्त्र टीका बनाने का मद।
शास्त्र ने टीका बनाने का, हमने टीका होती ऐसी टीका करी, ऐसी। भगवान ही तो अक्षर की कला है, टीका तो अक्षर की रचना है, उसमें विकल्प होते तो ये राग है। हा, समझ में आया? ये शास्त्र की टीका करने का मत, शास्त्र के व्याख्यान करने का मत। हमें 1 कलाक 2 कलाक भाषण ऐसा कर सकते हैं, लोग को भला देते हैं। अरे भगवान, भाषण बोलो, तेरी ये शक्ति क्या। शास्त्र का व्याख्यान निकलने का करो, यानी अलग झलक कर रहे अंदर देशी देशी હોય ને ભક્તા મર પ્રણિત મૌલી મની પ્રમાણમ આમ કે તે શું છે પણ ये तो शब्द है, उसकी रचना नहीं, उसकी देशी हमने आवड़ते हैं, ऐसा बार में दिखाओ है, ये झूठी बात है। घरों है अंदर दीवान क्या समझते? शास्त्र में ऐसी भाषा आती है, मनुष्य भव है, देव को वल्लभ है। आप मनुष्य देह है ना, देव को वल्लभ है। कहते हैं देवाणु प्रिय, देव ने वल्लभ क्यों है? देव मनुष्य को बांटते हैं, श्वेतांबर में ऐसा बहुत आते हैं। देवाणु प्रिय नौकर हो ने तो ऐसे कहे, देवाणु प्रिय आ काम करशो। आप मार्ग में मीठा अही कहते हैं कि शास्त्र व्याख्यान करने का मौज। हमने बड़ी विचक्षणता से शास्त्र कहने की शक्ति हमारी है। भाषा भगवान की भाषा तो जड़ की है, तो भाषा की जड़ की पर्याय आत्मा कर सकते हैं। भाषा जो उठती है वो तो जड़ की पर्याय है। ये परमाणु में ते क्षण में भाषा की पर्याय होने का जन्म क्षण है। परमाणु में भाषा होने का जन्मना उत्पन्ना काल है, तो ये भाषा होती है। विकास काल है। ऐसे तो क्षेत्र में भगवान त्रिलोकनाथ एम कहते हैं 102 गाथा में प्रवचनसार, क्षेत्र में जो समय समय में पर्याय होती है कि उसकी उत्पत्ति का एक काल है। वर्षे नहीं, निश्चय से तो द्रव्यगुण से नहीं। एक एक भाषा की पर्याय, परमाणु की पर्याय, आत्मा की पर्याय, निबोध जीव की पर्याय, के सिद्ध की केवल ज्ञान की पर्याय। तीती समय में उत्पन्न होने का उसका क्षण नाम काल है। समझ में आया? किसका तरह करना है? भाषा करना है, भाषा में ऐसा अभिमान करना है। क्या जाना है तेरे? संसार में जाना है। अहिया कहते कि घर छोड़ प्रभु एक भगवान पास जाना है अंदर। ત્રણલોકનો નાથ પરમાત્મા જાગ્રત સ્વરૂપે બિરાજે છે। જાગ્રત સ્વરૂપ એટલે જ્ઞાયક ભાવ। ચૈતન જુગતી જળ હળ સૂર્ય, ભગવાન પૂર્ણાનંદ ચૈતન જ્યોતિ જળ હળ જ્યોતિ થી બિરાજમાન આત્મા ભગવાન છે। આત્મા प्रभु चाहे इसमें जाना हो, सन्मुख जाना हो, तो आ बधा विकल्पना गर्व छोड़ना पड़ेगा। ये बिना अंतर जा सके नहीं। समझ में आया? लोग तुम्हारे आवे से ने हमने गेला सा नहीं चिमन भाई, तुम्हारे गेला सा था ने दरबार में गया था, वाणिया था,
એમના કુટુંબી ગેલાસાનું બરવાળા. કડક વાણીઓ હતો દાસમાણી, પણ કડક રજપૂત જેવો ગેલાસા કહેતા. તે દિવાનમાં જાય તો એને આમ લુગડું બાંધે ને આમ આ બેસવામાં આમ બાંધીને બેસે. એ ઓલી કડી બાંધે ને બેસીને બેસવાનું લુગડું બાંધે એને ટેવ હતું. હા એને અહીં બાંધે બેસે. થોડો એક છોડો અહીં નાખે, છોડો પાય એને ટેવ હતી. બીજો ઉઘાડી નાખે ફટ દિવાનમાં. દિવાન પણ ને ક્યાંક પછી બીજી વાર કરે. એટલું બધું થયું. પછી એક ફેરી દરબારે હુકમ કર્યો કે આની આંખમાં મરચાં ભરો. આંખમાં મરચાં ભર્યા. કેવા સાથે વાણિયા એમના કુટુંબી આ ચિમનભાઈ દાદા વરદાદા એના કુટુંબી છે બરવાળા. વાણિયા હતો પણ રજપૂત ગરાશો મહાકડક. એની આંખો કડક નહીં. એટલો બધો ગરો એને. કોર્ટમાં પણ મારે એસે બેસી મને કોણ ના પડશે. હા અંતે એને કેદમાં નાખી દીધું. મરચાં આંખમાં ભરે. આ સંસાર દશા. હે ક્યાં અભિમાન નહીં તો એ તો એ પૂર્વના. પણ આ તો એસે કે વાણિયા આ તો વાણિયા દશા મારી. પણ રાજપૂત જેવી અભિમાન શક્તિ હતી. શરીર પણ એવું. આ ગઢી બનાવ્યો છે ને એને બરવાળાનો નહીં, ગઢ બનાવ્યો છે પોતાનું જેને હતું ગઢ. શેના ગરો બાપા. હા કે છે કે શાસ્ત્ર બનાવી કે બરમદ એ 4 કરોના શબ્દનો છે ને. શબ્દ આવ્યો ને 4. કવિ કળા વાદ શાસ્ત્ર ને લેખન 4 શબ્દ આવ્યા. એ શબ્દનો ગૌરવ અને ઉપર કયા તે રસાયણ અને રુધિ એનો ગૌરવ ઇત્યાદि અનેક વિકલ્પ જાળों का त्याग रूप. હા પ્રભુ આ વિકલ્પની જાળ છોડી દે નાથ. हमें ऐसा है हमें ऐसा है हमने ऐसा आवड़ते हैं ऐसा हमें समझा है ने બહારની ચીજના જાણપણા કરીને અભિમાન. શાસ્ત્રના જ્ઞાની અભિમાન કરે છે અજ્ઞાન है. શાસ્ત્રના જ્ઞાની ये क्या ज्ञान है. समझ में आया. भगवान की वाणी सुनकर जो ज्ञान हुआ ये अपनी पर्याय से अपने से हुआ है. छता वो ज्ञान नहीं. क्योंकि वाणी निमित्त है न अपना मां ज्ञान की पर्याय उत्पन्न क्षोभम की. ये ज्ञान नहीं, ये अज्ञान है. परलक्षी ये ज्ञान, ये अज्ञान है. अपना भगवान चिदानंद प्रभु ज्ञान की खान आनंद का सागर शांति का सरोवर प्रभु एमा डूबकी मार जा न. धन्यवाद बापू. क्या कहते हैं. हाँ करना वार वार न करना. बोला करते हैं कि तो तम्बाकू न जरूर कितना वर्ष गया उसमें. इतना पैसा थया 1 करोड़ रुपया ऊपर तो पैसा कितना पैसा थया છે. કેટલાક લોકો કેટલા કરોડ કહેતા હતા. એક માણસ કહેતો હતો 6 કરોડ 10 કરોડ એમ કઈ કહેતો. પણ એટલા ગમે ન હોય. અહીંયા 2 લાખ શેઠિયા રહ્યા. એક જણ કહેતો તમારા ગામમાં બહુ પરિચય વાળો માણસ હતો. હવે એમાં ને એમાં જે રોકાણા ત્યાં ને ત્યાં दूर. अरे बात बापा आते ये जे राग है. ये राग नो राजी को है प्रभु. राग बुलंदशहर ना बादशाह कहवाय છે 2 જણા. નાના મોટા શેઠ. નર્મ એના ગરુ નથી.
પણ એમાં રોકાઈ ગયા, રળના 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 આમ નરમ મારશો એને દે ભાઈ. હા, પણ અહીંયા તો વારમાં રોકાના એ મા અભિમાન અજ્ઞાન એમ કે છે. હા હા હા, ટીકાકારે ખુલાસો કહીએ. એ 4 પ્રકારના શબ્દ ગૌરવ સ્વરૂપ અને આગળ પૂર કહીએ આદિ अनेक विकल्प जालों का त्याग रूप प्रचंड पवन. हाँ हाँ हाँ, जैसे अग्नि हो न पवन हो तो अग्नि बराबर प्रगले. हम नहीं कहता कि जहाँ है हाँ आग ત્યાં વાહ अग्नि लागे ना जो पवन आवे तो खूब प्रगले. एम आई कहते हैं कि अपनी एकाग्र होने में जो अग्नि है उसमें पर का त्याग रूपी पवन है. विकल्प का त्याग रूपी पवन है, अंतर में एकाग्र रूपी अग्नि है. अरे भगवान ते तेरी चीज नहीं महिमा न की प्रभु. बहुत किया अंदर टूड़ दानी वा साधुपन अपन पाया अनंत वा पंच महावरत क्षय मुर्गों ये सब राग है तो राग है. समझ में आया? ये अनेक विकल्प जाल रूपी त्याग याना त्याग रूपी प्रचंड पवन देखो. हाँ हाँ हाँ, ये विकल्प नो त्याग ये प्रचंड पवन. हाँ, उसने प्रज्वलित हुई दहकती हुई निष्पदात्म तत्व के ज्ञान रूपी अग्नि की कणी. हाँ हाँ हाँ, ये पवन परना त्याग रूपी पवन ने अंतर में एकाग्रता रूपी अग्नि. हाँ हाँ, निज शुद्धात्म तो भगवान त्रण केवल इन तीर्थंकर नहीं, ये भगवान ने तीर्थंकर नो विचार ने ध्यान ही तो राग है. पंच परमेश्वर नु स्मरण पंच परमेश्वर नु भक्ति ये तो सब राग है. निज शुद्धात्म तत्व ते शब्द ले आए है पोतानो प्रभु. हाँ हाँ हाँ, निज शुद्धात्म तत्व के ज्ञान रूप अग्नि अंदर में एकाग्रता लगन. घणो प्रयत्न चाहिए भाई, या कहीं वाते वड़ा था એવું નથી. वाते वड़ा समझते हैं कहीं कहते नहीं. हमारे काठे बातों करें के वड़ा होता है, वड़ा हो ने भुजिया है. हाँ भाषा फिर बाजी बात करे तो प्रेम वड़ा वड़ा नहीं होता था भजिया तेल में पण के बात करे तो भजिया हो जाए. हाँ 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 हाँ, ये छे निज शुद्धात्म तत्व भगवान उसका ध्यान में विषय बनाकर ध्यान में ध्येय बनाकर वस्तु जे भगवान पूर्ण स्वरूप एक एक शक्ति ऐसी अनंती शक्ति और एक एक शक्ति में अनंती शक्ति एवं भगवान अनंत शक्ति नो सागर अनंत शक्ति नो समुदाय नो पर्वत डूंगर है. तो उसमें एकाग्रता ध्यान એટલે એકાગ્રતા अंदर. अग्नि की कणी है, अंदर में ध्यान लगाना अंदर एक कणी के विकल्प से नहीं होता है. तो कहता हजी एना ख्याल में मार्ग ની રીત પદ્ધતિ ન આવે, ये मार्ग कैसे करे. अरे मनुष्य जे चाल्यो जाए छे, जे जे समय मिनिट जाए छे ये मृत्युनी समीप जाए छे. मृत्युनो समय नक्की छे
એ સમયથી આ જેટલું મિનિટ જાય છે એ બધું સમીપ મૃત્યુની સમીપ જાય છે. આ જાણે કે હું મોટો થઈને આગળ વધું છું. માં જાણે કે દીકરો મોટો થાય છે, પ્રભુ કહે છે કે મૃત્યુની સમીપ જાય છે. આવી વાત છે ભાઈ. અરે એ જે દુકાન જે મકાન માં બેઠો હોય ત્યાં એ દુકાન ને મકાન નું ક્ષેત્રાકાર રૂપિયા બસ. એ ગલ્લો શું કેવાય ગલ્લો મોટો હોય. અમારે અહીંયા પેરિસમાં મોટો ગલ્લો રાખે છે દુકાન. પૈસા વાળા થયા જ ને મોટો ગલ્લો મોટી ઓલી રાખે. 5,000 રૂપિયા આવે એક દિવસે ઉગાડી નાખે ને એ લોકો. 2 લાખની ઉગાડી નાખે છે. પાલે છે જે ગલ્લો હોય મોટા. એક આમ દેખીને ગલ્લાનો જ્ઞાનમાં આકૃતિ ગલ્લારૂપ થઈ જાય ને. આ મકાન ને સ્ત્રી ને કુટુંબ ને જે શરીરના સંબંધીઓ આત્માના સંબંધીઓ છે ને એ કઈ આ તો ખબર ક્યાં છે એના શરીરના સંબંધીઓ, બાયડી, છોકરા, કુટુંબ, મા બાપ, બધા શરીરના સંબંધીઓ. એના ઉપર જતા એની આકૃતિ એના રૂપે થઈ જાય. એ હું છું. જે મકાનમાં રહ્યો 2-5 લાખ મકાનમાં. ભારે કસમ કીધું બાપુ આમાંથી નીકળવું. હતા ને મુંબઈમાં મેં જે મકાનમાં આમોદના ભાઈ હતા, રમણીકભાઈ, 70 લાખનું મકાન. એક મકાન 70 લાખનું. આમાંથી નીકળવું કઠણ પડે માણસને. કીધું ભાઈ એની વૃત્તિ થઈ જાય કે આ સાંભળવાનું. આની કોઈ બારી આની કોઈ હવા આવે. અરે શું છે બાપુ, એ સંયોગી ચીજને આકારે વૃત્તિ તારી થાય બાપુ. તું હણાઈ ગયો. સમજાય છે કાંઈ? ક્યાં કે એને આવવું જોઈએ કે નહીં? આવનારને આવનારને સાંભળનારને આવવું જોઈએ ને. એ તો કે છે समस्त पापों को भस्म कर डालती है. जैसे अग्नि की कणी काश के पर्वत को भस्म कर डालती है. મકાન શું છે પણ આપણું જગતની દુબળીનું મહાણનું મકાન છે. મસાણમાં જેમ હાડકામાં ફાસફૂસ થતી, બાળકો એમ માને કે બૂંટડું થાય કાંઈક, પણ એ તો હાડકામાં ચમક થાય. હાડકા પીડ્યા હોય ને એમાં બધા હાડકા ચમક છે બહારની. આત્મા ક્યાં આમાં હતો? આ તો પરથી છે. બહારનું આકર્ષણ જગતને ચૂકવી દે જીવને. બહારની સુંદરતા ને આકર્ષતા ખેંચાઈ જાય છે એનો આત્મા ત્યાં. એને વિકલ્પને છોડ પ્રભુ. તારું કલ્યાણ કરવું હોય, હિત કરવું હોય તો, બાકી તો રખડે ચમત્કારથી. એમાં ત્રસની સ્થિતિ 2000 સાગરની છે. ત્રસમાં 2000 સાગર રહી. એમાં 2000 સાગર પૂરા થયા છે. નિરોધમાં જશે ચાલ્યું બાપુ. એમાં કઈ તારું હાલે એવું નથી ત્યાં. उसी तरह यह समस्त पापों को भस्म कर डालती है. जन्म जन्म के एक से एक कर्मों को आधे निमिष में नष्ट कर देती है. આ વસ્તુ એટલી છે મહાપ્રભુ કે जिसका ऊपर सन्मुख है एक क्षण मात्र में कर्मना गुंज हो बाड़ी ने भस्म हो जाता है. ऐसी ताकत उसमें है. विश्वास क्या है? विश्वास क्या है?
क्यों कि एक समय की पर्यायની રમત અનાદિકી કાળની પ્રગટ રૂપે વ્યક્ત રૂપે જે પર્યાય છે અવસ્થા એની એમાં રમતું અનાદિની, પણ એક સમયની પર્યાયની પાછળ મહાપ્રભુ બિરાજે છે એની કિંમત કરી નહીં, પર્યાયની કિંમત કરી. 9 પૂરો ભણ્યો, 11 ભણ્યો. હા હા હે અહીં આત્મામાં આવે મહાપ્રભુ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે. ગીતામાં આવે છે ને એની ટીકા મહાપ્રભુએ કરી છે, ખબર છે. આ તો મહાપ્રભુ પોતે ભગવાન મહાપ્રભુ છે. અરે એનામાં અનંત ઈશ્વરતા પડી છે, એનામાં એક પ્રભુતા નામનો ગુણ છે, પ્રભુતા નામની એક શક્તિ છે જે અખંડ પ્રતાપથી સ્વતંત્રપણે શોભે એવો એ ભગવાન છે. હા હરે હરે ક્યાં પણ વિશ્વાસ. હા હા પર્યાયનો વિશ્વાસ, રાગનો વિશ્વાસ. એક દવા ખાઈ નાની તો તાવ મટી જશે એવો એનો વિશ્વાસ. પાણી નાખશો તો તરસા મટી જશે, પેટમાં હાર નાખ્યો તો ભૂખ મટી જશે એનો બધો વિશ્વાસ. હા 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 એક સમયમાં પરમાત્મા पूर्णानंद प्रभु वो तरफ का विश्वास करके भरोसे भगवान ने लईने भगवानનો ભરોસો લઈને ભગવાન તરફ જા. वहां तो परमात्मा प्रकाश है ना, परमात्मा ही तुम है कि एम कहते हैं. समझ में आया? हाँ. ऐसी शुद्ध आत्म ध्यान की सामर्थ्य जानकर देखो, ऐसी शुद्ध आत्म ध्यान की सामर्थ्य जानकर उसी ध्यान की भावना सदा करनी चाहिए. लो हाँ. जिसने आत्मा का हित करना है तारे में रोना की भी सोदा ही लेते हैं तो ये करूं कैसे? अरे आंबन में હવે કોણ રોતો તો. ऐसी आत्म ध्यान की सामर्थ्य जानकर कैसी कि एक क्षण में ध्यान लगाकर अनंत काल का कर्म भस्म हो जाता है. कर्म तो सिंह काल का ही होता है, पर शास्त्र में बोले अनंत काल का उपराजेला कर्म ऐसे बोले, नियम सार में पाठ है. नहीं तो कर्म है तो असंख्य वर्ष का 70 कोड़ा कोड़ी का ही कर्म होता है, विशेष नहीं. पण परंपरा चाला आता है उस ऐसे कहने में आता है नियम सार में है कि अनंत काल थी उपराजेला कर्म ऐसे. ये भगवान आत्मा अपने भरोसे ना भगवान ने चढ़ावी दें. વિશ્વાસ એ વાણ ચાલે છે. અંતરનો પૂર્ણાનંદનો નાથનો વિશ્વાસ આવતા એને મોક્ષની ગતિ પ્રગટ થાય છે, મોક્ષનો માર્ગ. અને જ્યાં મતિ ત્યાં ગતિ વાગે આ 2 શ્લોકમાં. જહાં મતિ તેસી ગતિ, જો તેરી મતિ રાગના પ્રેમમાં હોય તો તેરી ગતિ નરકને નિરોધ. और तेरी मति परमात्मा प्रत्ये हो. पूर्णानंद नो नाद प्रभु मति त्या लागी दिया तो मति ऐसी गति देह छूटकर तेरी सिद्ध गति हो जाएगी. क्यों कि भगवान तो अनादि अनंत आत्मा है. હવે जिसकी मति जहाँ है ત્યાં रहेगा. रागना पुण्यना प्रेमनी मति है तो ત્યાં રહે दुखी भूता भविष्यकाल में. અને આ બાજુ ગુનાદ ખાઈ ગઈ મતિ. પલટો મારી
तो भविष्य में ये निर्मोह परिणति में रहेगा और पूर्ण परिणति होकर सिद्ध पद उसको होगा। हाँ, समझ में आया। आत्म धर्मनी वातों झीणी बहु बापू। भगवाने तो आत्मनो धर्म कह्यो છે। समझ में आया। एवा ध्यान सामर्थ्य जानकर उसी ध्यान की ये एम समझ लेते। तो कोई एम कहे कि तुम्हें तो ऐसा कहते हो टीका करने के, तो तुम्हें आप विकल्प क्या उठाते क्यों लगते हैं? ऐ सुन तो हुई। समझ में आया। उत्तर की पार्टेशन है टीका। ध्यान का ही सामर्थ्य, ध्यान का ही भावना। तो भावना कहता हो तो तुम विकल्प शास्त्र के बनाया? अरे सुन तो सही हवे। सिद्धांत क्या है वो समझाते हैं, विकल्प उठते हैं, भाषा होती है, ऐसे क्या है। समझ में आया। इसे इस शास्त्र में आया था ना, क्यों वाणी ने गोपवाथी इतना लाभ होता है। ये प्रश्न हुआ था संप्रदाय में, तो महाराज वाणी से जितना लाभ होता है तो आचार वाणी करते हूं करवा। उत्तर के तेरा तेरे खबर नहीं। ये वक्त इसकी दृष्टि सिद्धांत क्या है, ये ऊपर दृष्टि है, वाणी वाणी के कारण से निकलते हैं। जो उसने सिद्ध करना ये बात क्या, इसे लक्ष्य न लेकर तुम वचन में मौन करने से आलाप है, तो वचन तुम क्या बोलते हैं? उत्तर किए है खाने के बन लायक। हाँ, समझ में आया। एक विच्छा में एक बात आती है, 114 गाथा थी। ओ एक પૂરું છે। બારંગનો સારા है। बारंग बनी बनी ने पण करना तो स्वरूप तो एक ये है। बारंग में कहा पण ये है, तेरी चीज की अनुभूति कर। भगवान आनंद का नाद के अनुसरी ने तू हो, नाम अनुसरी ने भूति हो। आग ने अनुसरी ने होता है तो अनंत काल से हुआ, नरक ने निगोद का कारण ही तो है। वो कहते हैं न कि एक बार वंदे जो कोई नर पशु गति न हुई, समित फिकर की। एक बार वंदे में हूं थी एम के नरक पशु नर पशु न जाए कृपा हो तो भले स्वर्ग में जाए पण પછી नरक निगुज में जाएगा। समझ में आया ने? कई खबर तत्व नहीं। नरक में सैनिक राजा नारकी पण है अभी आई समकी। तो समय समय तीर्थंकर गोत्र बांधते नरक में। बाहर नो संयोग आया पीड़ा ना संयोग, तो शरीर जितना राग है इतना त्या परतर लक्ष्य दुख है। अंतर में गटागटी सुख नहीं होती है। वो आया नहीं नारकी। चिन मूर्ति द्रगदारी की मोही लागी लगत जटपटी। नरक ना दुख बाय से भोगवे पण अंदर सुख ની ગટાગટી। बहुत जुदा बापू। क्या दृष्टि है अंदर। पूर्णानंद ना नाथ नो स्वीकार है, पर्याय बुद्धि है। ये पर्याय ये भी नहीं, तो त्रिगाड़ी पूर्णानंद का नाथ हूं ऐसी अंतर्दृष्टि में विश्वास अनुभव में आ गया। गृहस्थाश्रम में रहा था, राज कुटुंब में रहे थे, हजारों रानी, पर अंदर में निर्लेप नारियर का गोटा जेम छूटा जेम काचली में रहे। ऐसे यहाँ कहते हैं प्रभु एक बार लगनी तो लगा दे।
तो ये कहते हैं ज्ञान की भावना सदा करनी चाहिए। ये तरफ की दृष्टि तो सदा ही रखनी चाहिए, हम कहते हैं। हाँ, समझ में आया। 114 115 आगे ये जीव चिंता को छोड़कर, योगेंद्र देव कहते हैं, मुनि है, भावलिंगी संत है, आनंद कंद में झूलते हैं। जरी विकल्प आया है तो शास्त्र रचना हो गई, शास्त्र बनाया नहीं उसने। हाँ, क्योंकि शास्त्र का एक अक्षर अनंत परमाणु की रचना है, तो अनंत परमाणु की पर्याय बने में आत्मा क्या करे। एक क अनंत परमाणु का अखंड है, क ये परमाणु की पर्याय है, आत्मा की नहीं, आत्मा से बनती नहीं। तो कहते हैं कि चिंता को छोड़कर शुद्धात्म तत्व को निरंतर देख, मती ने ત્યાં लगा दे, पीछे भले विकल्प हो, सुश्वास हो। मेली भी सयल अवखड़ी, जो अवखड़ी ये चिंता એની ભાષા છે કઈક। મેલીવી સયલ અવખડી જીય નિચિંતો ચેતુ નિવેશઈ પરમ પયે દેવો નિરંજણો જોઈ। हे जीव, समस्त चिंताओं को छोड़कर निश्चित भूतवा कर अपने मन को परम पदे, परमात्मा भगवान निज स्वरूप परम पद में धारण कर। सीध ने परमात्मा ये नहीं आए तो आप परम पद पोते। एक समय की पर्याय व्यक्त है, उसकी द्रव्य स्वभाव पर्याय की अपेक्षा अव्यक्त है। पर्याय में द्रव्य आया नहीं, वो अपेक्षा से अव्यक्त है, पर द्रव्य तरीके व्यक्त नाम प्रकट है। अरे क्या में आया। और ज्ञान की एक समय की पर्याय, कोई द्रव्य का ज्ञान होता है, पर्याय में द्रव्य नहीं आता। पर्याय में पूर्णानंद का नाद जितनी शक्ति सत्व है, इतना ज्ञान आता है पर्याय में। वो द्रव्य स्वभाव की जितनी शक्ति, इतना ज्ञान आता है, वो ज्ञान की पर्याय में वो द्रव्य आया नहीं। समझ में आए कि परम पद में धारण कर मति को। तेरी पर्याय में सारा भगवान तेरे देखने में आएगा। छता वो पर्याय में द्रव्य आएगा नहीं, परम पद से ही पर्याय में नहीं आएगा, पर परम पद का स्वरूप जो ज्ञान, एक ज्ञान आएगा यहाँ, पूरे ज्ञान पर्याय में आएगा। में आया और निरंजन देव को देख। अनावरणी चीज भगवान, निर्लेप चीज, जिसको निमित्त आवरण भी नहीं। आवरण तो वर्तमान पर्याय के साथ निमित्त संबंध है, द्रव्य में आवरण है नहीं। निरावरण परमात्मा विराजे ત્યાં। આ બરફની પાટું નથી હોતી મુંબઈમાં, બરફ પાટું 25 મણની ખુલ્લી લઈ જાય ખટારામાં। અમારા મુંબઈ જઈને ઘણા દેખ્યા, 25 મણની પાટા મૂકે। એકલો બરફનો પિંડ, એમ ભગવાન એકલી શાંતિનો પિંડ બરફ હે મોટો। શાંત રસ का पिंड है। अरे क्या पण कोई भी विचारे કર્યો નથી એને। ये पाग तो बर्फ नहीं है, सारी ठंडी ठंडी ठंडी, पर ये तो जड़ है। भगवान ठंडो शांत रस मूल प्रभु आपको। क्या मति ने धारण कर। समझ में आया। निरंजन देव को देख। हे हंस शब्द एम दिया देखो है।
પોતે નાખ્યું છે તો हंसलो से प्रभु हंस की चांच में खटास होती है और दूध ने पानी इकट्ठा कर दे चांच नाके दूध का मावा हो जाए पानी निकल जाए ऐसे भगवान तेरी परिणति में ऐसी ताकत है कि परिणति अंदर ढली तो मावा हो जाए राग आदि जल भिन्न हो जाए विशेष कहेगा परमात्मा प्रकाश 115 गाथा भावार्थ એ હંસ જીવને હંસ કરીને બોલાયા है हंस જેમ दूधને पानी इकट्ठा हो जुड़ा कर दे और दूध पीते हैं दूध ने जल एक स्थान में हो तो दूध का मावा करके खाए जाते हैं और पानी जुदा पड़ जाता है ऐसे ही जीव देखे सुने भोगे भोगों की वांछा का खोटे ज्ञान सब चिंताओं को छोड़कर अत्यंत निश्चित होकर अपने चित्त को परमात्मा स्वरूप में स्थिर कर आ तो सम्यक दर्शन पामवानी प्रथम रीते आए ये बिना व्रत ने तप जे करते हैं ये बधा निर्थक चार गति में रजोने की चीज है पहली सम्यक दर्शन चौथों गुणस्थान कैसे प्राप्त हो वो बात समझी है कि अपने चित्त को परमात्मा स्वरूप में स्थिर कर शुद्ध चैतन्य घन अद्वितीय अतीन्द्रिय सुख रूप प्रभु उसमें ध्यान करके क्या स्थिर था समझ में आया प्रथमा कर्तव्य है ये कोई व्रत ने तप ने नियम करे आ प्रगट थाय ये चीज नहीं हो तो विकल्प राग है सब क्रिया समझ में आया भगवान परमात्मा स्वरूप शुद्ध चैतन्य आनंद दो उसका ध्यान ध्येय बनाकर उसमें लीन होना ये परमात्मा आत्मा की प्राप्ति का उपाय है बात है भाई समझ में आया परमात्मा में स्थिर कर उसके बाद भाव कर्म द्रव्य कर्म नौ कर्म अंजन से रहित तेरा भगवान तो निरंजन स्वरूप अंदर है निरंजन नाम जड़ कर्म से रही पहले भाव कर्म लिया है दया दान व्रत भक्ति पूजा नो भाव ये भाव कर्म राग है ये राग को छोड़कर और द्रव्य कर्म नो कर्म शरीर ऐसा अंजन है मैल है पर्याय में जितना दया दान व्रत भक्ति पूजा का भाव उत्पन्न होता है ये सब मैल है अंजन है ये अंजन से रहित भगवान निरंजन है समझ में आया क्या भगवान 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 तो हो गए निर्मल उसमें क्या है
हाँ, आत्मा की बात है। अब भगवान भाई की बात है अंदर की। हाँ हाँ, कहते हैं कि है ना, बड़ा શું છે निरंजन दे परम आराधना योग अपना देखो अपना शुद्धात्मा है। हाँ हाँ हाँ, भगवान निरंजन पुण्य ने पाप का अंजन नाम मैल कर्म ने शरीर रूपी अंजन उससे भिन्न है। आहा, भगवान सम्यक दर्शन पाने की चीज जो है ये तो परमात्मा निरंजन आनंद कंद प्रभु है। ये भाव शुद्धात्मा है, उसका ध्यान कर तो है, वो भगवान नहीं। भगवान साक्षात परमात्मा आत्मा है। एक बैसे के विश्वास नहीं, कभी सुना नहीं, सुने हो तो विश्वास बैठे नहीं। हाँ हाँ, है सुना ही नहीं, અત્યારે तो सुनने में आता नहीं है। અત્યારે तो व्रत करो न अप्पा करो परिमा धारण करो, धूड़ है बड़ी साग है तो आ करना चाहिए, आ करना ही करना तो जहर है। राग की क्रिया ही तो जहर की क्रिया है। हाँ तो अमृत का सागर की क्रिया, ये बात लेते हैं। जो भगवान दास ने सागर न रहने वाला है, तो भगवान सागर में आनंद आनंद सागर में भगवान है आत्मा। ये चाहे तो शास्त्र का भणतर हो, गमे ते नव तत्व का भेद सहित उसका ज्ञान क्या हो, पर वो कहीं सम्यक ज्ञान नहीं। हाँ, चार अनयोग भण्या हो, करोड़ों अब्जो श्लोक, वो कहीं सम्यक ज्ञान नहीं। भगवान मुन पाप का अंजन से रहित ऐसा परमात्मा का ध्यान करके एकाग्र हो, उसका नाम सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है। समझ में आया? ये कहा न, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नौ कर्म। नौ कर्म में शरीर वाणी, द्रव्य कर्म में जड़ कर्म 8, भाव कर्म में दया दान आदि विकल्पों, हिंसा जुठों चोरी आदि ना विकल्पों। ये अंजन से रही निरंजन देव, भगवान निरंजन देव आत्मा अंदर। ऐसे देव परम आराधना योग, आराधना योग है। ये अंतर्मुख थईने इसकी सेवा करने लायक है। भारी बातों भाई, जी तो सम्यक दर्शन कैसे हो इसकी बात है। समझ में आया? सम्यक दर्शन विना बड़ी मार ले लिया 8 ने 2 ने 11 ने, एकड़ा विना ना मीडा है सब मिथ्यात है क्या तो। समझ में आया? भगवान निरंजन देव परमात्मा ऐसा जो तेरा शुद्धात्मा वो तरफ का सन्मुख होकर ध्यान लगाकर अंदर में स्थिर हो तो उसको सम्यक दर्शन होगा। समझ में आया? है उसका ध्यान कर,
पहले यह कहा था कि खोटे ज्ञान को छोड़कर, तो खोटे ज्ञान का नाम शास्त्र में उपज्ञान कहा है। उपज्ञान का लक्षण, उसका अर्थ ऐसा है, निर्मल बुद्धि वाले पुरुष जिन शासन में उसको उपज्ञान कहते हैं, जो द्वेष से पर के मारने का, बांधने का, छेदने का चिंतन करे और राग भाव से परिश्रय आदि का चिंतन करे। अरे राग भाव से महाव्रत का परिणाम आदर करे, ये सब अपज्ञान है। समझ में आया? राग का होना वही अपज्ञान है। अपध्यान नाम माठा ध्यान। है अगर उधर ध्यान होगा। ये पंच महाव्रत का भाव, 12 व्रत का भाव, या राग है या अर्जान है, लोगों ने कहीं सत्य नहीं, खबर नहीं है। ये आर्त ध्यान है, आत्मा की शांति आर्त नाम पीड़ाती है उसमें। समझ में आया? तब जेम कहानी में पीलते हैं, ऐसे भगवान चैतन्य भाव प्राण, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, ऐसी जो अपनी शक्ति रूप भाव प्राण है, ये राग होते हैं तो भाव प्राण की हिंसा होती है। पुरुषार्थ सिद्धि में तो वो कहा अमरचंद्राचार्य देव कि राग का होना वही हिंसा है, पर की हिंसा कौन कर सकते हैं? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय एम से उसमें कंटस्थ है हिंसा। राग का उत्पन्न होना, ये निरंजन देव परमात्मा की अंदर हिंसा होती है। आत्मा शांति त्याग आती है। गजब बात मारे प्रभु, वितराग मार्ग ऐसी चीज है। तो फिर एक आर्त और दूसरा रौद्र, दोनों ही नरक निगोद के कारण है। समझ में आया? धर्म ध्यान ये कहते हैं, आनंद स्वरूप में लीनता होना वो धर्म ध्यान है। धर्म नाम वस्तु का स्वभाव, आनंद ने ज्ञान वस्तु का स्वभाव, वस्तु स्वभाव धम्मो, ये वस्तु का जो स्वभाव आनंद ने शुद्ध चैतन्य घन, उसमें एकाग्रता होना, उसका नाम निश्चय सच्चा धर्म ध्यान कहने में आता है। समझ में आया? नर्क नहीं होगा, इसलिए विवेकियों को त्यागने योग है। शुभ शुभ भाव का ध्यान धर्मी को त्यागने योग है। भारी बात बताई। समझ में आया? अंतर भगवान चैतन्य बिंब प्रभु, उसका दर्शन करना हो तो, उसकी प्रतीति करना हो तो, उस शुद्ध चैतन्य भगवान में एकाग्रता होते हैं तो उसका दर्शन होता है। कचरा बचरा क्या? कचरा राग है, ये कचरा है। राग है न, अपनी मानता राग मेरी चीज है, वही मिथ्यात का कचरा है। राग की क्रिया से मेरे लाभ होगा,
ये मिच्छात का बड़ा कचरा है वो कहता है हाँ अरे शू थाय दुनिया लूंटाई गई है अनादि से मानते हैं कि मैं कहीं धर्म करिए अरे शू थाय हाँ आचार्य कहते हैं विवेकियों को तो विकल्प जो राग आदि है त्यागने योग है हा 115 हुई। એ રીતે ગાથા 114 તથા 115 નો વિસ્તાર પૂરો થયો। પૂજ્ય ગુરુદેવે ધ્યાન સંબંધી ઘણી વાત કરી। સમ્યક દર્શન નિર્વિકલ્પ ધ્યાન દ્વારા જ થાય છે અને એ જ કરવા જેવું છે, બીજું કાંઈ કરવા જેવું નથી। ધર્મ ધ્યાન સંબંધી પણ વાત કરી। આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ। હવે સુખધામ બોલીએ।